method. Good evening, everyone. Am I audible, students? Okay, thank you. Okay, students, we are going to discuss red flags. Today we are going to discuss red flags. Okay, so let us start. Let us start with the red flags here. Uh, okay, let's begin with the red flag. Is the screen visible to you all? Okay. So this is a fifth part of the 5-step
analysis, 5-step fundamental analysis. Okay, so let us see that what is red flags. So red flags means a flag which is being shown by the like I can say as there is a red signal, there is a danger ahead, like a train man or the person who is in the last we can say last bogie of the train, and he shows the red flag, or the person is there who is standing or there is a signal of red. So red means what? It is a danger, right? So look for the signs of trouble. So in this stock market also, if the company is having some or the other trouble, and we are getting a signal that there is a red indication or there is a danger ahead, then at that time we should not at all select that such type of stock. So focus on both accounting and non-accounting fraud. So there are two types of frauds here. So one is the accounting fraud and the other one is the non-accounting fraud. So here we have to focus on the we can say the red flags. Okay, so like what type of red flags are there? So there is a checklist. I have prepared the checklist in which we are going to get the we are having 8 types of checklist. 8 checklists are there. We have to check it. Okay, and in that first is worst scenario. So the scenario of the company is becoming worst. Then there is a declining cash flow, diversification to diversification. Ah, okay, so diversification to diversification. So the situation is getting worse. CFO is leaving. There is a chief financial officer who's leaving the company. Then fake sales. Then gains from investments, राइजिंग इन्वेंट्रीज, स्टॉक बहुत सारा बढ़ते जा रहा है, एंड फेक प्रॉफिट्स. ठीक है, सो दीज आर दी 8 चेकलिस्ट which indicates a red flag. Okay, so shall we begin, students? Shall we begin? Shall we begin? Please reply. Okay, number 1, prepare a worst case scenario. Worst case scenario. Worst case scenario. So now here worst case scenario means what? Always think and write about what the worst can happen. मतलब कंपनी के साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है, या फिर फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या हो सकता है. सो लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी व्हेन आई एम गिविंग दिस सेशन, मैं ये सेशन आपका ले रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपका सेशन ले रहा हूँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लाइट जा सकती है, मेरा वाईफाई बंद हो सकता है, या फिर सेशन मैंने अचानक से मैंने इधर लीव पे दबा दिया बटन, लीव हो गया. ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, मुझे याद है कि गलती से मैंने बंद कर दिया और किसी को तो मैंने होस्ट बना दिया था और मैं फिर बाद में मीटिंग ही ज्वाइन नहीं कर पाया, तो फिर मुझे मजबूरी में कैंसिल करना पड़ा लेक्चर. सो हियर वी नीड टू प्रिपेयर फॉर अ वर्स्ट केस सिनेरियो. मतलब ज्यादा से ज्यादा एज कंपनी के साथ भी क्या बुरे से बुरा हो सकता है, वी नीड टू चेक इट. अब यहाँ पे कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हो तो ऐसी हवा में स्टॉक नहीं खरीदना है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है ले लेना है. आपको उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है. और ये 5वां जो पॉइंट है दैट इज रेड फ्लैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन व्हाट इज द कंपनीज मेन क्लाइंट रन्स अवे. मतलब कंपनी जिसको माल बेचती है, ठीक है, तो उसको 100 करोड़ का माल उसको सेल किया है और क्रेडिट पे सेल किया है. ठीक है, तो क्रेडिट पे सेल किया और वो कंपनी का क्लाइंट भाग गया, तो क्या होगा? व्हाट इज द बबल इन द इंडस्ट्री सडनली बर्स्ट. बबल मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग शेयर्स खरीद रहे, तो एक बड़ा बबल बन गया कि भाई ये शेयर बहुत ऊपर चला गया, उसका ओवर ये बन गया है ओवर वैल्यूड शेयर. तो क्या होगा अल्टीमेटली, क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, एक पीक पॉइंट पे जाके वो लोग क्या कर देते हैं, वो शेयर को छोड़ देते हैं, तो बबल बस्ट होता है. जैसे अभी बीच में 2 दिन पहले बिकॉज ऑफ दी ओमिक्रॉन वायरस ऐसा लग रहा था कि लाइक ओमिक्रॉन बहुत फैलने वाला है और बहुत ही ट्रबल करेगा. तो क्या हुआ यहाँ पे,
जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, जो पूरा स्टॉक मार्केट क्या हो गया, एक बबल बर्स्ट हो गया। सो बबल बर्स्ट हो गया मतलब एक ऊपर से बुल रन चल रही थी, तो अचानक से वो 2 दिन क्या हो गया, एक तरीके का ब्लड बाथ हो गया मार्केट में। सो व्हाट इफ द गवर्नमेंट रेज्ड टैक्सेस टुमारो, अचानक से गवर्नमेंट ने बोला हम टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि टैक्सेस भी तो कंपनी का एक हिस्सा है ना। सो दिस इज व्हाट इफ द कंपनी स्टार्टेड गेटिंग डिफॉल्ट ड्यू टू रिसेशन। तो जस्ट लाइट बंद करके जाना, सॉरी यार, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, लाइट फैन बंद कर दो, ठीक है। और ये सो व्हाट इफ द लोन्स स्टार्टेड गेटिंग डिफॉल्ट ड्यू टू रिसेशन, तो रिसेशन की वजह से जो लोन्स वगैरह है, जो कंपनी ने मतलब एक तरीके का क्रेडिटनेस दिया है, क्रेडिट दिया है, तो वो अगर डिफॉल्ट हो जाएगा तो क्या हो सकता है। तो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो आप अगर कोई कंपनी के स्टॉक खरीद रहे हो तो यू शुड नो अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, क्लियर है, समझ रहा है, एकदम थियोरेटिकल पार्ट है, एकदम लॉजिकल बातें मैं कर रहा हूँ आज, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Shall we go ahead? Bye-bye. Declining cash flow. If net profits and the cash flow from operation, if net profit is increasing and cash flow from operation is decreasing, when this happens, account receivable will increase. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है, अरे बाप रे, पहले कंपनी 100 करोड़ कमाती थी, अभी 1000 करोड़ कमा रही है, बहुत अच्छी बात है, 1000 करोड़ कमा रही है, लेकिन आपने चेक किया कि नेट कैश इनफ्लो है वो बहुत कम है, मतलब 100 रुपए का माल बेच रही है, सिर्फ 10 रुपया ही यहाँ पे कैश फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली 100 रुपए का माल बेचने से 10 रुपए कैश आ रहा है, मतलब 90 रुपीज का अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया यहाँ पे। अब वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इट कैन बी बिकम अ बिग प्रॉब्लम हियर। सो देयर इज अ डिक्लाइनिंग कैश फ्लो, and when there is a declining cash flow then it is a red flag, ये एक तरीके का रेड सिग्नल है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आप सभी को समझ रहा है? प्लीज रिप्लाई। नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल वैशाली, नॉर्मली क्या होगा, फॉर एग्जांपल सेल्स जो है वो मैंने एक आइटम मैंने 100 रुपए का बेचा है, ठीक है, और उस पर मेरा मार्जिन है 30%, 30%, मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, माय प्रॉफिट विल बी 30 रुपीज। लेकिन मैंने जो ये सेल किया है ना, ऑन क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, ठीक है, कितना क्रेडिट बेसिस है, 90 रुपीज क्रेडिट बेसिस है, और यहाँ पे बाकी का कैश बेसिस कितना हो जाएगा, मतलब मुझे रोकड़ा कितना मिल रहा है, 10 रुपए, ठीक है। तो मेरी कंपनी में कैश इनफ्लो कितना होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो कितना होगा, 10। सो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो मुझे दिखेगा 30 रुपए प्रॉफिट कमाया है, लेकिन कमाया है, लेकिन कैश फ्लो आया है क्या, पैसा आया है क्या, 90 रुपीज, मतलब आपका अभी तक मुद्दल भी, जो माल का पैसा है वो भी अटका पड़ा है, और आपका प्रॉफिट भी सामने वाली पार्टी के पास है। मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या है, डेटर्स होते हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल आपके कितने बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 90 रुपीज हो जाएंगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर नाउ? ओके ओके ओके, नाउ उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन। नाउ डाइवर्सिफिकेशन आगे लिखा है, देखो, डाइवर्सिफिकेशन सर मतलब प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो आगे पीछे होना चाहिए। यस ऋषिकेश, आगे पीछे मतलब प्रॉफिट समझो, अगर हमारा नॉर्मली
₹30 हो रहा है, तो कम से कम आपका जो कैश फ्लो है वो कम से कम ₹70 तक तो रहना चाहिए। मतलब आपने ₹100 का माल बेचा तो कम से कम आपका क्रेडिट जो है वो मतलब क्रेडिट 30% रहना चाहिए मैक्सिमम। ₹100 का माल बेचा है तो कम से कम ₹70 आपका कैश इनफ्लो होना चाहिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट से रिलेट नहीं करना है इसको, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि कैश इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए। कैश इनफ्लो अगर कम है कंपैरेटिवली, देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अ कंपनी, so it's a red flag. Now डाइवर्सिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा है जानबूझ के W वर्ड भी लिखा है मैंने, क्योंकि वर्स हो सकती है सिचुएशन। Avoid companies that are trying to diversification by acquisition or buying other companies. ऐसी कंपनी को अवॉइड करो जो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी कंपनी को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरी को अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्च फेल्ड एक्विजिशन एग्जांपल्स इन इंडिया। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी पे जाएंगे। सर्च फेल्ड एक्विजिशन, 4 biggest merger and acquisition, 8 India's biggest mergers and acquisition। चलो आपके लिए मैं स्क्रीन यहाँ पे ऑन कर दूंगा, शेयर कर देता हूँ। चलो दिख रहा है यहाँ पे द बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स नहीं देखना है। न्यूयॉर्क HDFC and Max Life. So Max Life Limited, being fourth India's largest private insurance company, is a joint venture between Max Financial Services and Mitsui Sumito Insurance Company, 26%, a Japanese insurance company. So यहाँ पे reason for failure is the proposed merger was not approved by the sectoral authorities IRDA. Section 35 of the Insurance Act bars of the merger. So यहाँ पे क्या हो गया कि HDFC ने ट्राई किया मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को अक्वायर करने के लिए, बट वो फेल हो गए। यहाँ पे क्यों फेल हो गए? क्योंकि IRD इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ने सेक्शन 35 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट के तहत उनको परमिशन नहीं दी। ठीक है, कि आप नॉन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मर्ज नहीं हो सकते। सीधी सी बात है, बैंक इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मर्ज नहीं हो सकती, उनको अपने अलग खुद का इंश्योरेंस कंपनी खोलना पड़ता है। तो जैसे कि ICICI बैंक है तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ है, HDFC है तो HDFC लाइफ करके है, HDFC लाइफ करके उन्होंने एक नया बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग कंपनी, जैसे कि IDFC है और श्रीराम फाइनेंस है। तो द प्रपोज मर्जर प्री डिटरमाइंड टू गेट 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अ बैंक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कम अंडर वन रूफ। तो यहाँ पे दोनों नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी। देन क्या हो गया, द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ श्रीराम लिमिटेड, अ लिस्टेड एंटिटी, ड्यूरिंग द मर्जर टाइम वाज 33.77% हेल्ड बाय प्रमोटर्स। डोमेस्टिक ने इतना अक्वायर किया था 5.58%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने 22.42% अक्वायर किया था श्रीराम लिमिटेड का। Few of the investors included Dynasty Equation, श्रीराम ग्रुप। हाँ ये ठीक है। हाँ, अभी श्रीराम का कैपिटल कैसे डिवाइडेड है? श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में था और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में था। और IDFC की यहाँ पे होल्डिंग जो थी वो IDFC बैंक, IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी बनी और IDFC बैंक लिमिटेड बन गई। तो यहाँ पे दिस मर्जर स्ट्रक्चर, ठीक है, फेलियर ही देखते हैं हम लोग यहाँ पे। Some of the investors from IDFC Bank demanded 60% premium on fear of diminution of their holdings in the swap. मतलब यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक तरीके का IDFC के जो इन्वेस्टर्स है बड़े बड़े, उन्होंने बोला कि लाइक हम लोग को 60% शेयर चलेगा और 40% से ज्यादा 40% शेयर होल्डिंग एंड देयरफॉर कुड नॉट गिव गुड वैल्यू टू श्रीराम ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, 40% से ज्यादा 40% से कम शेयर होल्डिंग भी हम लोग हमारी छोड़ेंगे नहीं और हमको 60% चाहिए। The shareholders of the Shriram feared holding company discount the structure and the valuation were not mutually acceptable to both the parties। तो यहाँ पे जब भी मर्जर और एक्विजिशन होता है स्टूडेंट्स, तो ये मर्जर और एक्विजिशन किसके बीच में होता है? दो कंपनीज के बीच में होता है। दो कंपनीज के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी मानने चाहिए। मतलब यहाँ पे देयर आर वेरियस पार्टीज आर इन्वॉल्व।
एंड वेरियस पार्टीज आर इन्वॉल्व, सो देयरफॉर सबके दिमाग सेम नहीं होते, सबका अलग अलग डिमांड रहता है। जैसे कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं, अगर आपको एक एरिया में, एक झोपड़पट्टी एरिया में या फिर नॉर्मल एक एरिया में आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो वहां पे समझो 10 घर है, तो 10 लोगों का थिंकिंग अलग अलग रहता है। 10 लोग में से 2 4 लोग बोलेंगे कि हमको रो हाउस बनाना है, 8 लोग बोलेंगे हमको फ्लैट बनाना है, एक बोलेगा मेरे को मेरा एक बड़ा बंगला बनाना है। That's not possible. So therefore, because of involvement of various stakeholders here in the company's merger and acquisition process, so there are high chances of getting a failure. So therefore, this failure was there. Then Arcom and Aircel manage merger. Arcom और Aircel का भी था यहाँ पे merger. तो आप क्या करना, आज वीडियो एक देखना कि like various failures, various mergers, various acquisition failures in India. तो वो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्नैपडील एंड फ्लिपकार्ट, ठीक है। ये क्या हुआ, मर्जर्स दैट फेल्ड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द डील। क्लोजिंग होते वक्त यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। भारती एयरटेल, ज़ेन, सन फार्मा, टारो। सो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो ये भी हमारा एक पॉइंट बन जाता है दैट वी हैव टू check whether the company's failure is there or not in acquisition or merger, ठीक है, clear? So this is the diversification. Now in simple language I can say that sometimes diversification can become diversification. Why? Because you are applying for the acquisition in the other company. तो अभी आपको आइडिया ही नहीं है उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी में आपने कभी बिजनेस ही नहीं किया है, तो आप उसको अगर अक्वायर करने जाओगे, सीधा सीधा उसका बड़ा सा बिजनेस हाथ में लेने जाओगे, और कोई भी छोटी सी गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। सो बेटर है कि इससे अच्छा है कि अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है तो स्टार्ट विद अ न्यू प्रोडक्ट, start with a new product line rather than acquiring a big thing. एकदम से आप अगर एक स्टेप पे से सीधा 5वें स्टेप पे उड़ी मारोगे तो there are high chances of your leg broke or else you can fall. So therefore diversification directly by acquiring the firm can become a huge trouble for the existing company and it can affect the existing companies जो company है already उसके profits पे affect हो सकता है। Clear? Then CFO, that is Chief Financing Accounting Officer or Chief Financial Officer leaving the company. अचानक से कंपनी के फाइनेंस ऑफिसर ने बोला कि लाइक मेरे को काम नहीं करना है, मतलब उसने कुछ तो गड़बड़ किया है अकाउंट्स में, या फिर कंपनी क्या कर रही है, बड़ी सी कंपनी जो है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे क्या कर रही है, अकाउंटिंग ऑफिसर मतलब जो है बड़ी सी कंपनी यहाँ पे फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वहां पे सो अकाउंटिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खुद ने छोड़ दिया उसको, मैनेजमेंट यहाँ वहां का जो कंपनी का है वो फ्रॉड कर रहे हैं and he is not able to, that accounting officer is not able to digest the information, that's why he has left the company. So chief financing of accounting officer or the financing officer is the biggest post, is the biggest and the reputed post in the company. So you can think of that there is something very much suspicious in the company, so therefore the accounting officer is leaving the company. So there might be many other reasons also, but you need to find out the main cause that why the accounting officer has left the company. Okay, so this also indicates the red flag. Fake sales. So sometimes यहाँ पे फेक सेल्स भी कंपनी दिखा सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रैक हाउ फास्ट अकाउंटिंग रिसीवेबल्स आर इंक्रीजिंग रिलेटिव टू सेल्स। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि अचानक से कंपनी ने क्या किया है कि फेक सेल्स दिखाना चालू किया, जानबूझ के अपना प्रॉफिट बढ़ा के दिखाने के लिए कंपनी सोचती है कि लाइक अकाउंटिंग सेल हम लोग हमारा सेल्स दिखाते हैं। आप फेक सेल्स कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी देखो आपको मैं बता रही है, ऑडिट वगैरह में हम लोग ना बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं चीजों को ऑडिट करते वक्त। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, देयर इज वन कंपनी, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओनली डायरेक्टली। देयर इज वन कंपनी, okay, and their sales every year sales is suppose 1000 rupees, 1000 रुपए का सेल होता है, ठीक है। एंड उनका अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स इज समवॉट 300, मतलब 1000 रुपए के माल बेचने पे 300 रुपए उधारी रहता है, 700 रुपए रोकड़ा आ जाता है और कैश इनफ्लो हो जाता है
700. इन दी नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं बोलूंगा मैं, आने वाले करंट ईयर में, ये लास्ट ईयर का डेटा है, करंट ईयर में क्या हो गया, कंपनी ने अचानक से 2000 का सेल्स कर दिया। अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, कंपनी ने 2000 का सेल किया, लेकिन उस 2000 के सेल में हुआ क्या, अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो सीधा हो गया 1200। अब 1200 का मतलब क्या है कि लाइक ऑलरेडी 1000 का माल तो कंपनी बेचती थी रेगुलर में, और उस पे 300 रुपए अकाउंटिंग रिसीवेबल था। तो यहाँ पे 300 प्लस 900 बन गया 1200। मतलब 1000 का करंटली कंपनी सेल कर रही है, उस पे 300 रुपए अकाउंट रिसीवेबल जा रहा है, मतलब उधारी पे 300 रुपए का माल बेच रहे, बराबर। अब करंट ईयर में उन्होंने क्या किया, 2000 का सेल कर दिया, दैट्स अ गुड थिंग। बट अचानक से 900 रुपए, मतलब जो दूसरा 1000 रुपए जो बेचा है, तो दूसरे 1000 रुपए को उन्होंने सेल किया है, जो एडिशनल 1000 रुपीज का सेल किया, उस पे 900 रुपीज का उन्होंने उधारी दिया। सो दैट्स अ रेड फ्लैग। क्यों रेड फ्लैग बोलेंगे, क्योंकि कंपनी अपने इज ट्राइंग टू शो फेक सेल्स। सर फेक सेल कैश में दिखा सकते, नहीं दिखा सकती ना कंपनी, कैश दिखाना पड़ेगा उनको, एक्चुअल में बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ेगा कैश, कि हाँ हमने इतना कैश रिसीव किया है। अगर कैश रिसीव किया है मतलब वो फेक सेल नहीं है, फिर वो तो एक्चुअल सेल्स है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग व्हिच कैन हैपन, सो दिस इज अ डेंजर साइन वेयर यू कैन अवॉइड, एंड दिस इज अ रेड फ्लैग। तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेंजर साइन, इफ सेल्स आर इंक्रीज बाय 15%, अकाउंट रिसीवेबल इज इंक्रीज बाय 25%। अगर आपका सेल 15% से बढ़ रहा है तो आपका अकाउंट रिसीवेबल ज्यादा से ज्यादा 5%, 7% से बढ़ना चाहिए, 7% मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। सो देयर इज अ डेंजर साइन ओवर हियर। क्लियर, इज इट क्लियर? By looking at the sales figure and the accounts receivable in the assets में आप account receivable चेक करेंगे, ओके, एंड असेट्स में आप चेक करेंगे, एंड इनकम स्टेटमेंट में screener.com पे, एवरीथिंग ऑन स्क्रीनर पे आपको सब चीजें मिलेगी स्क्रीनर पे। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, यहाँ पे मार्च 2010 में 3773 करोड़ का सेल था, ठीक है। और आपका यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसको हम लोग अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं, 73 था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 3773 का सेल्स पे 73 का ट्रेड रिसीवेबल है। तो ट्रेड रिसीवेबल इज अ माइनर पार्ट, मतलब बहुत अच्छी बात है कि बाकी का उन्होंने सब कैश में ही करते हैं। 81 नेक्स्ट ईयर में 81 हो गया, नेक्स्ट ईयर में 4609,000 करोड़ से सेल भी बढ़ गया। अगेन यहाँ पे 1000 करोड़ से सेल बढ़ा, तो यहाँ पे 113 हो गया। यहाँ पे थोड़ा ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है। देन अगेन 6185,000 से बढ़ गया, तो यहाँ पे 10 से बढ़ रहा है, तो 10 से बढ़ रहा है इज ओके। वहां पे 1000 से बढ़ रहा है, यहाँ पे 10, वहां पे 100% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 10% बढ़ रहा है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? शैल वी गो टू द प्रेजेंटेशन? मम्मी बाहर है, हाँ कहीं तो है बाहर, मैंने
So this is about the fake sales. Gains from investment. On profit and loss statement, the dishonest company will put investment gains under total revenues. Need to check cash flow statement in detail from annual reports. So कंपनी क्या कर सकती है, अपने प्रॉफिट फिगर्स को ज्यादा बताने के लिए वो लोग बोलेंगे कि हमने ना 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर हम लोग को 500 करोड़ आया इंटरेस्ट या 500 करोड़ डिविडेंड है। तो कंपनी का मेन काम क्या है, अभी ब्रिटानिया कंपनी का मेन काम क्या है, बिस्किट बेचो, बाकी के जो आइटम्स है ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है, जो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, वो बेचने का काम है। अचानक से ब्रिटानिया कंपनी बोलती है अभी हम लोग का वो सब कम नहीं है, हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अचानक से आप इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाओगे तो आपकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। और इसका मतलब ये है कि ब्रिटानिया कंपनी को लॉस हो रहा है, इसके लिए वो अपने लॉस को कवर करने के लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करके वो प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के भी दिखाया जाता है कि लाइक इन्वेस्टमेंट गेन्स है, तो आपने दिखा दिया कि हमें यहाँ पे 500 करोड़ का इंटरेस्ट मिलने वाला है या मिल चुका है। तो अगर 500 करोड़ का इंटरेस्ट मिला है तो फिर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिटेल में चेक करना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट्स में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या सच में इनको 500 करोड़ मिला है? सो हियर दे कैन शो द प्रॉफिट्स, लाइक अपने लॉस को कवर करने के लिए दे कैन शो द इन्वेस्टमेंट गेन्स to hide the losses of the company. So this is also one of the red flag of the company. Okay, clear students? Kindly reply. Then rising inventories. अभी rising inventories का मतलब क्या है, अचानक से आपका इन्वेंटरीज बढ़ रहा है। इन्वेंटरीज बढ़ रहा है मतलब क्या हो गया, आपका स्टॉक बढ़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि आपका रेगुलर प्रोसेस चलता है, फॉर एग्जांपल every year your purchase ऑफ रॉ मटेरियल, अभी आप एक कंपनी हो तो रॉ मटेरियल खरीदोगे, कच्चा माल खरीदोगे और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे। तो आप 1,000 करोड़ रुपए का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करते हो और सेल्स आपका फिगर दिखता है सेल ऑफ एफजी, कॉस्ट पे दिखाता हूं मैं इसको, प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर, प्रॉफिट अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। और आप हमेशा यहाँ पे नॉर्मली 900 का सेल करते हो और आप कभी कभी 950 का भी सेल करते हो। तो आपका इन्वेंटरी में मतलब गोडाउन में माल कितना बचेगा, आइदर इट कैन बी 100 और 50, बराबर ना, बराबर कि नहीं? तो चलो ये हटा देता हूं, मैं ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता। आपने 1,000 रुपए का माल खरीदा है, कच्चा माल, और उसमें सब एड बिड करके आपने सेल किया है 900 रुपए का, तो आपका गोडाउन में कितना बच रहा है, 100 रुपए। अचानक से करंट ईयर में आपका परचेस तो उतना ही है, ठीक है, और इन्वेंटरी बढ़ गई आपकी 800 की, मतलब सेल्स कितना होगा, 200 रुपए का। सो यहाँ पे बड़ी दिक्कत आ सकती है आपको कि लाइक ट्रबल व्हेन इन्वेंटरीज राइज फास्टर देन सेल्स, इन्वेंटरी सेल्स से ज्यादा बढ़ने लग गया। मतलब अभी देखो, देख सकते हो आप यहाँ पे सेल्स हो गया बेचारा 200 एकदम, और इन्वेंटरीज हो गई आपकी 800। सो दिस कैन बी अ ट्रबलसम थिंग। मैन्युफैक्चरिंग समथिंग एंड स्टोरिंग इट इन वेयरहाउस यूजेस कैश। तो अभी यहाँ पे देखो, आपने 1,000 रुपए का माल खरीदा है, उसको बना के रखा है गोडाउन में फिनिश गुड्स 800 रुपए का, और उसको सिर्फ स्टोर करके रखा है, तो ये 800 रुपए आपका क्या हो गया, ये पैसा अटक गया ना, आपका पैसा अटक गया कि नहीं? आपने एक ऐसे स्कीम्स तो सुने रहेंगे कि लाइक क्या गोडाउन, क्या कुछ तो ऐसा नाम अच्छा ही है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, कि लाइक वो जो बचा हुआ माल रहता ना, क्लोजिंग क्या बेचते हैं उसको, बचे हुए माल को, क्लियरिंग स्टॉक क्लियरेंस सेल। हाँ याद आया, देखो अच्छा नाम है, स्टॉक क्लियरेंस सेल। तो स्टॉक क्लियरेंस सेल का क्या होता है, उन लोग ऐसा बोलते हैं, उन लोग का ऐसा बोलना है कि भाई हमको अगर कोई 1,000 रुपए में भी चीज आई है तो उसको 1,000 में बेच देंगे हम लोग, चलेगा, या 1,000 100 रुपए में बेचेंगे। जो चीज आप मार्केट में 1,000 की 1,700 रुपए में बेचते थे पहले,
लेकिन अभी आपके पास आपको पैसे की जरूरत है तो आप 1000 की चीज 1100 में बेचने रेडी है। क्यों? क्योंकि आपको स्टॉक क्लियर करने का पैसे की जरूरत है। तो स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा रहेगा ना, तो जाने का और खरीदने का उधर से, चाहे पैंट शर्ट कुछ भी रहेगा। सो यहाँ पे कंपनी के लिए बड़ी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि इन्वेंटरी 800 रुपए का है, मतलब आपका 800 रुपए का कैश अटक गया उधर, है कि नहीं? That is manufacturing something and storing it in a warehouse uses cash. Okay, so that's why it is also one of the red flag, because inventories are rising. Clear? Rising inventory, समझा? Can you reply? Okay. Talking about the fake profits. Trouble when a company keeps increasing its profit from a stagnant sale. बड़े स्मार्ट होते हैं, होशियार होते हैं, लेकिन हम भी डबल होशियार है उनसे। डबल होशियार मतलब कैसे डबल होशियार? अभी सीधी सी लॉजिकल बात है इधर। लाइक फॉर एग्जांपल, सेल इज 1000, profit is 200. Again, next year sale 1000 है, प्रॉफिट 300, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगेन, अगले साल उसके सेल है 1000, प्रॉफिट 400, ठीक है। तो अब यहां तक ठीक है भैया जी, यहां तक ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो आप 1000 रुपए का माल बेच के 200 रुपए कमाते, उसके अगले साल 1000 रुपए का ही माल बेचा 300 रुपए कमाते, यहां तक भी ठीक है, चलो विश्वास कर लिया। लेकिन उसके बाद आप 1000 रुपए का माल बेच के 400 रुपए कमा रहे, नॉट एट ऑल पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप 400 रुपए कमा ही नहीं सकते हो। अरे 400 रुपए कमाने के लिए आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा। 1000 रुपए के एक रुपए की चीज पे आपको 40 पैसे का मार्जिन रखना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने रेट बढ़ा दिया तो कस्टमर स्विच हो जाएगा दूसरे प्रोडक्ट पे। He's not going to buy your product. Why? Because you are charging high to earn more profit. So ultimately your sales can decline. अल्टीमेटली आपका सेल्स क्या हो सकता है? डिक्लाइन हो सकता है। सो देयरफॉर ये कंपनी क्या करती है? फेक प्रॉफिट दिखाने के लिए क्या करती है? सेल उतना का उतना प्रॉफिट बढ़ाते जाती है। तो यहाँ पे ये भी नजर आपको रखनी है कि आपका सेल्स उतना है और प्रॉफिट ऐसे अचानक से कैसे बढ़ेगा। कंपनी का ये तरीका रहता है फेक सेल्स दिखाने का। सो ट्रैक द रेट ऑफ सेल्स वर्सेस प्रॉफिट। आपको क्या करना है? सेल्स को प्रॉफिट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर 1000 का माल बेचा है तो 300 प्रॉफिट सीधी सी बातें बनता है। 1500 का माल है तो 450 प्रॉफिट बनता है। यस, सेल इंक्रीज देन ओनली प्रॉफिट इंक्रीजेस ना। अरे सेल 1000 रुपया और प्रॉफिट थोड़ी बढ़ते जाएगा, इट इज इलॉजिकल थिंग, है ना। सो देयरफॉर यू नीड टू चेक इट। ओके, सो दिस इज द रेड फ्लैग, दैट इज द फेक प्रॉफिट्स। ओके, सो दैट इज प्रॉफिट्स में सेल उतना का उतना है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, टैक्स डिडक्शन ले सकते हो, खुद के शेयर्स वापस खरीद सकते हो। तो भी ये चीजें ठीक है, ये मान सकते हैं। लेकिन अचानक से 300 का 500 हो जाएगा प्रॉफिट, तो वो नहीं मान सकते। हाँ, आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है? अगर 1000 रुपए का सेल है, 300 रुपए प्रॉफिट कमाया था लास्ट ईयर, तो इस साल आपका अभी कितना होना चाहिए? 350 प्रॉफिट हो गया। तो 350 प्रॉफिट हो गया तो कैसे हुआ? 50 रुपए का प्रॉफिट कैसे बढ़ा? तो समझो आपने कॉस्ट कटिंग किया, आपने एफिशिएंटली रिसोर्सेस बनाए और आपने जो जहाँ पे 10 रुपए का प्रोडक्ट बनता था वहां पे 8 रुपए का प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, वही प्रोडक्ट 8 रुपए में बनाया। क्यों? 2 रुपए आपने बचाए एक पर प्रोडक्ट पे। क्यों? एफिशिएंसी काम करके, एफिशिएंट काम करके, कॉस्ट कटिंग करके। बेनिफिट ऑफ सम टैक्स रिडक्शन, कुछ टैक्स रिडक्शन के बेनिफिट लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के। बाइंग बैक ओन शेयर्स, मतलब जो मार्केट में हमारे शेयर्स थे वो प्रमोटर्स ने फिर से खरीद लिए, तो उससे क्या हो गया कि उनको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। सो ये एक बार हो सकता है, एक बार मान सकते हैं। These are the reasons of increase in the profit if the sales are stagnant. But if these things are not present, then you have to identify, you have to determine that there is a fake profit. Clear? So this is about the fake profit. Is it clear? Can you reply? Okay. Okay, students. Okay.
So that's all for today. That is all about the presentation, students. तो हमने क्या क्या देखा? Worst scenario, declining cash flow, diversification. ठीक है, go through the PPT, go through the video. अगर नहीं समझ रहा है तो please ask. CFO is leaving, fake sales हो रहा है, gain from investment, rising inventories, fake profit. These are the things where you need to check it out. ठीक है, आपको ये चीजें चेक करना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको कंपनी के एग्जैक्ट फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हो. तो दिस वर द बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस एंड आई वांटेड टू हियर. मुझे अभी मैं सोच रहा था कि लाइक अभी 7:35 ही हुआ है, तो लाइक वी कैन व्हाट वी कैन डू इज लाइक हम लोग आगे का पार्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे. दैट इज कुछ और भी फंडामेंटल एनालिसिस मैंने बनाए हैं, सो we can go through that. Okay, just a minute. Let me share this red flags with you and मैं एक just आपके लिए थोड़ी मेहनत की है मैंने और भी, तो we will discuss that. तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जाऊंगा, तो आप सभी को वापस से ज्वाइन करना है. ये अभी इसको मैं अभी एक 10 मिनट्स का आपको ब्रेक देता हूँ मैं, ताकि ये वीडियो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और मैं इसको यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा इस लेक्चर का. हाँ ठीक है, ठीक है. स्टॉप लॉस ऑर्डर भी मैं सिखा दूंगा आप लोग को, डो नॉट वरी अबाउट दैट. स्टॉप लॉस ऑर्डर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, ओके. स्टॉप लॉस भी मैं कवर कर लूंगा. प्लीज मुझे फिर से सेकंड सेशन में याद देना, तो आई विल एक्सप्लेन इट. स्टॉप लॉस ऑर्डर और बाकी की जो फंडामेंटल एनालिसिस है, ठीक है, पहले हम लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे आपके डाउट से, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू. Intrinsic value is the very very important fundamental ratio, fundamental analysis के लिए. So that we are going to study in the next lecture. That is, I'm going to share the screen, I'm going to share the lecture link after 10 minutes, 10 or 15 minutes. 10 minutes में ही share कर दूंगा. I will share it in 10 minutes. Till the time I have to search for my one of the book. मुझे वो भी नहीं मिल रही, मैं check कर लेता हूँ, and I will take your lecture. Okay. Okay, students. So you can leave now, and till the time the video will be uploaded. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. After 10 minutes, next link for the fundamental analysis.